This is my first sit down video that has happened in the past few months. आजकल वैसे भी सबको टी gossip 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 चाहिए ना. So this is it. Not a 12th grader anymore. My parents got an idea कि भाई मेरे से नहीं होने वाला. I was blank. I was struggling a lot with physics and chemistry. कोई भी DU के कॉलेज में BSc नहीं है. GAT DU में कंसिडर ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे. He was like 1 lakh. He ghosted us. And वो तो बोल रहा था कि अक्टूबर तक हो जाता है. हमारे like, oh my god, इस साल के एडमिशन बंद हो चुके हैं. Hello you all, welcome back to my channel. Hello my cute little rishtadars, because that's the only audience I have right now. But if you are not my rishtadar and still watching this video, then love you, keep watching. Okay, so this is my first sit down video where I'm gonna tell you some things about my life that has happened in the past few months, and it's really important for me to share that. So आजकल वैसे भी सबको टी gossip 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 चाहिए ना. So this is it. This is it. First things first, I am not a 12th grader anymore. I am officially a college student. Tomorrow is going to be my first official class. The course, the university, the all the things related to college, I might tell you in the end of the video, or I'll make a separate video on it if this video gets too long. But the main story jo hai, that goes around back to February. So this is basically about CUET and my career choice, how I got there. So वैसे अगर तुम लोगों को पता हो that I was a medical student and I also joined Akash for the same, and I appeared for NEET. Okay, but since like 12th के last months में we can say November, December, January, ठीक है, my parents got an idea कि भाई मेरे से नहीं होने वाला है. ठीक है ना. Obviously यार, मतलब maybe I could have told them myself कि I don't think that I'll be able to do it, but I didn't. But they got the idea. So my mother took me to a counselor in February. Okay, and he was very good person. Like, he was so good. He told me all the possibilities and he gave me proofs. Okay, so हम लोग वहाँ पे गए and हमें फर्स्ट मीट जब हमारी हुई तो हमें 1-1.5 घंटा लगा वहाँ पे. He asked me various questions. So he had a psychology minor. Okay, so maybe that was the reason he was able to know how I am reacting to, like, why I'm reacting to things the way I was. Okay. So he asked me a few questions. First of all, like, he gave me some things to read. Okay, I read it, and then after like 10 seconds, he asked me, now tell me, what did you read? And I was blank. He asked me the, like, what is a choice or option, what is literated, what is educated. He asked me like questions like these to get to know my temperament, and थोड़े बहुत उन्होंने पढ़ाई से related भी questions पूछे. And luckily I had psychology with me, and in the end of the session he told that I don't see her temperament in the medical field or MBBS. Rather, all the answers that I had given were in psychological terms. They were in psychological terms. So he suggested me that I could do that. But still, obviously, I wasn't also convinced there, because like, यार 2 साल मैंने इतना पूरा साइंस में रगड़ा है. रगड़ा तो क्या यार, it was difficult for me. It was genuinely difficult. So मैंने 2 साल उसमें करा. So I didn't want it to like completely switch to a new thing. पहले मेरी मम्मी गई थी, उसके बाद मेरे पापा गए उनसे मिलने, and then the meetings continued and all of that, and then I also kind of made my mind that okay, I want to do this because I was struggling a lot with physics and chemistry. I just wanted to get away from them, because like, I wanted a career that didn't include them at all, and this was the best option. I was like, yeah, agar, even if I do BSc, then I would just need to do basic chemistry, bio. I knew, so I didn't had any problem in it. Then he told me that
in the end they provide coaching for CUET, and I honestly didn't knew anything about CUET, like what happens, you know, क्या होता है उसमें, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं, क्या होता है, कुछ भी मुझे नहीं पता था. तो he told me a few things, and then eventually we decided that yeah, I'm gonna join my coaching. He only like filled all the forms. उन्होंने सारे मेरे फॉर्म्स भरे. We filled like forensic का फॉर्म भरा था, I filled क्राइस्ट का फॉर्म, नीट तो मुझे देना ही था, CUET भरा था. ऐसे हमने ये 3-4 फॉर्म्स भरे थे. तो हमने CUET की क्लासेस शुरू करी, ठीक है. एंड उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट I had taken was psychology, second bio, chemistry, English, and GAT. If you don't know GAT, it's general aptitude test, which contains some logical reasoning questions, GK questions, and some basic maths. Okay. So we joined it. I was like, okay, let's join it. And just like मेरा boards 4 April को खत्म थे, and that batch started from 29th March, and उसमें basically सिर्फ GAT की classes होती थी for 4 hours, and English की भी होती थी. GAT and English they used to teach. तो ऐसे ही नॉर्मल क्लासेस चल रही थी. द क्लासेस वर प्रिटी गुड. अब तुम पूछोगे केमिस्ट्री बायो की लाइक क्लासेस वहाँ चल रही थी, तो वो इतनी उनकी क्वालिटी थी नहीं. सेकेंडली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो मैं जहाँ जो भी मेरा वो वाला स्टडी मटेरियल था यूट्यूब से या मैं कहीं से भी अपनी बुक्स वगैरह से पढ़ती थी, तो मैं केमिस्ट्री बायो वहाँ से करती थी. तो यहाँ से मैंने सिर्फ GAT एंड इंग्लिश करी. क्लासेस वर गोइंग लाइक रियली रियली वेल. एंड मेरे को तो ये था कि लाइक आई एम गोना डू BSc इन साइकोलॉजी. आई मेड अप माय माइंड दैट मैं तो BSc साइकोलॉजी करूंगी, एंड द बेस्ट कॉलेज फॉर मी इज क्राइस्ट, because I didn't wanted to go in DU for like I don't know, like I just didn't want to for some reason. सबसे पहला पेपर ही मेरा क्राइस्ट का था. आई गेव द पेपर, इट वेंट रियली वेल, एंड देन उसका थोड़े दिनों बाद उसका इंटरव्यू था. मैंने इंटरव्यू भी दिया, एंड फिर मेरे CUET के पेपर्स भी लाइक चल रहे थे साथ में, तो वो भी मैं दे रही थी. एंड मैं क्राइस्ट में सिलेक्ट हो गई इन गाजियाबाद वाले में, ठीक है. मेन मेरा लाइक बैंगलोर था, बट बिकॉज लाइक आई थिंक मेरा इंटरव्यू में व्हेन दे आस्क्ड कि लाइक why have you chosen Bangalore, I didn't have a solid reason for that. Getting into Bangalore is not that easy, so they gave me the Ghaziabad wala. I was still happy कि चलो ठीक है, हो गया. But that time पे obviously like my parents, and technically, like if we think logically, first preference was due, and the counselor told us that yeah, like private में तो हो जाता है admission, वहाँ पे why do you need to like reserve a seat by paying like 1-2 लाख रुपए वहाँ पे क्यों भरने हैं, वहाँ पे तो हो जाता है, अक्टूबर तक भी हो जाता है मैम, टेंशन मत लो, ये सब की टोल्ड. लाइक ओके फाइन, अगर हो जाता है तो ठीक है. Then CUET के results आए. I didn't got college in first round, second round, third round. I didn't. Okay, that's the harsh truth. But I didn't got college. And talking about my numbers, all would be wanting to know that. So I got 634 out of 1250. I know that's not really good, but they are not that bad कि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले. इतना तो लाइक DU ने इस बार बहुत ही मतलब चीजें करी हैं, which I have heard. In fact, like spot round में I even participated in spot round. Can you imagine? And spot round में भी the cutoff was 850 out of 1000. तो उसके बाद मेरा CUET का रिजल्ट आता है, ठीक है. एंड मुझे तब तक भी सब ठीक था. जब बारी आई प्रेफरेंस फिलिंग की, you can say that हाँ मेरी भी थोड़ी गलती थी, that I didn't research well. but अगर आप लोग सर्च करोगे गूगल पे नॉर्मली कि does Lady Shri Ram College has BSc, it will show yes it does. Okay, and we didn't knew that any कोई भी DU के कॉलेज में BSc नहीं है. It had BA psychology, and the counselor didn't told us. We were shook, like oh my god, because like it's not about कि आप BA कर रहे हो या BSc. in the end दोनों में आपको जाके MA ही like अगर आपको कोई भी आगे स्पेशलाइजेशन करनी है, it doesn't matter in India. but I was from science background, so I was like अगर मैं BSc कर सकती हूँ तो क्यों नहीं. एंड ये आपने बताया नहीं कि ये DU से करनी है. सेकेंड थिंग, दिस इज नॉट इवन द मेन पार्ट. जो उन्होंने मेरे से
कोचिंग की फीस वगैरह लेके क्लासेस दी, वी गॉट टू नो दैट जीएटी डीयू में कंसिडर ही नहीं हो रहा है. आई गॉट 94 परसेंटाइल इन दैट, द हाईएस्ट. एंड मुझे पता चलता है कि वो कंसिडर ही नहीं हो रहा है. ओ माय गॉड. बिकॉज केमिस्ट्री एंड बायो तो मैं ऑलरेडी कर ही रही थी ना खुद से, वो तो मैंने वहां से करी नहीं. और अगर मुझे जीएटी नहीं चाहिए होती देन आई वुडंट हैव टू लाइक पे दैट अमाउंट. जो भी मैंने अमाउंट वहां पे भरा वो मुझे नहीं पे करना पड़ता. बट वो काउंसलर ने ये बताया नहीं क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे. एंड चलो ये भी ठीक था, कोई बात नहीं यार. हम क्योंकि जब उन्होंने हमें बताया कि यार मैम बीए बीएससी में कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो वी लाइक ओके चलो विल डू बीए. ठीक है, नीट से बीएससी, देन आई केम टू बीए. ओके. सो उसके बाद मेरा नहीं हो रहा था. वी टोल्ड हिम कि भाई नहीं हो रहा, क्या करना है क्या करना है. सो ऑन 1st of August ही केम, लाइक उन्होंने हमें बुलाया कि मिलो. ही लाइक यू नो उसने काउंसलर ने हमें बुलाया कि आप मुझे 1 बजे आके मिलो. एंड ही केम एट 3 p.m. 3 p.m. 2 hours we were waiting for him. When we met ना, all what he said like, यस मैम टेंशन मत लो, मैंने आपके ड्यू के कॉलेजेस में बात कर रखी है एंड मैं आपका करवा दूंगा, बस थोड़े पैसे लगेंगे. हमने बोला कितने लगेंगे. ही वाज लाइक 1 लाख. वी वर लाइक ओके विल गिव इट लाइक. जबकि हमें बहुत लोगों ने बोला था कि यार ड्यू में पैसे वैसे लेके नहीं होता, बट ही वाज लाइक सो श्योर. एंड ही वाज लाइक ही वाज ऑलवेज सो बिजी एंड गोइंग टू कॉलेजेस की मैम मैं बात करके आता हूँ, ये करके आता हूँ. तो मुझे लगा मे बी कि लाइक मेरे नंबर इतने मेरे हिसाब से बुरे नहीं थे. तो आई थॉट कि यार मे बी मेरा हो जाए किसी के बेसिस पे. सो ही टोल्ड देम दैट ही हैज अ फ्रेंड जो वहाँ पे एचओडी है, उसका भी सरनेम लाइक मुंजाल है, सो आपका दिल्ली के वार्ड कोटा से हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट शिट ही टोल्ड अस. एंड उसके बाद हम पूछ रहे थे कि हमने बोला कि ओके ठीक है आप पैसे ले लेना, बट हम पैसे तभी देंगे जब लीगल डॉक्यूमेंट्स आप हमारे सामने कुछ दोगे तो सही ना तभी. तो ही वाज लाइक या मैम 50% पहले होगा 50% बाद में होगा. लाइक ओके. सो देन 10-15 डेज तक हम उनसे लाइक पूछते रहे कि भाई कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कब होगा. ही वाज लाइक अभी मैम नेक्स्ट राउंड आ रहा है उसमें ये सब स्टार्ट होगा, ये होगा वो होगा. ठीक है, वो ऐसे करते करते डिले करा उसने 15th of August तक. एंड देन he ghosted us for 10 literal days. We used to like call him every day 10-10 बार कि भाई फोन उठा, कहाँ पे है तू. मैसेज करते थे कि सर भाई आपने करवाना ही नहीं था तो आपने क्यों करा कुछ भी. We were very frustrated because ना हम यहाँ के ना हम वहाँ के, we didn't knew. तो उसमें जब उन्होंने लाइक आई गेस 5-6 दिन तक हमें कोई कांटेक्ट नहीं करा, वी वर लाइक लेट्स टॉक टू द क्राइस्ट वाला पीपल, क्योंकि वहां तो मेरा एडमिशन हो ही गया था. एंड वो तो बोल रहा था कि अक्टूबर तक हो जाता है वहां एडमिशन, कोई टेंशन की बात नहीं. हमने क्राइस्ट में फोन करा. व्हाट दे टोल्ड, मैम एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, अगले साल आना. लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट डू आई डू नाउ. अब मैं क्या करूं भाई, मतलब क्राइस्ट में क्लोज हो गई. तो हमने सोचा कि यार चलो मे बी फोन पे ऐसा बोल रहे होंगे बट वहां जाके शायद कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह लेके दे माइट डू इट. तो हम 1.5 घंटा ट्रैवल करके गए एंड गार्ड से सिर्फ हमने 1.5 मिनट भी नहीं बात करी होगी. एंड दे सेंट अस कि अगले साल ट्राई करना, इस साल के एडमिशन बंद हो चुके हैं, अंदर जाना अलाउड ही नहीं है एडमिशन के लिए. कंसिडरिंग कि मैंने उसका पेपर दिया, इंटरव्यू दिया एंड वो मेरा क्लियर भी हुआ था. ही डिडंट टेल कि ये एंड उस टाइम पे आप लोग लाइक मेंटल स्टेट क्या हो रही होगी कि भाई ड्रॉप ले क्या ना करें. एंड देन उसके बाद हमें क्लिक करा कि जो लाइक जहाँ पे मैं कोचिंग लेती थी अब वो सेंटर सिर्फ उसका नहीं था, वो तो काउंसलर तो एक जस्ट एम्प्लॉय था, मेन तो कोई और था. तो हमने वहां से एक नंबर निकाला और हमने वहां पे फोन करा. तो ही वाज, तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है फलानी. तो ही वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि उन्होंने आपसे पैसे लिए थे. तो हमने कहा नहीं लिए थे. एंड देन ही टोल्ड मी दैट ही इज अ फ्रॉड पर्सन. एंड उन्होंने हमसे तो लाइक हमने पैसे दिए नहीं, बट जिन पेरेंट्स ने आके पैसे दे दिए थे he has took the money and he is not even accepting that उसने पैसे लिए हैं. That was a shocker because the only person we believed
थ्रू आउट द प्रोसेस, लाइक February से हम उसके कॉन्टैक्ट में थे एंड अगस्त आ गया था, सो 7-8 months we the only person I was taking guidance was from him, and he was a fraud. And he told me that he was preparing for IAS, his parents are in army and all of that. That seems very, natural. That didn't seem fake. And then we asked the other person जो वहाँ पे like authorities में थे. So we asked him कि वो तो ये बोलते थे, तो अब क्या हुआ था? He was like, अगर वो आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहा होता तो would he like struggle for this 30,000 rupees job? बिकॉज एक बार पहले भी उसको जो काउंसलर था उसको फायर कर चुके थे ये लोग. बट ही टोल्ड अस दैट कि ही केम एंड ही रिक्वेस्टेड अस कि भाई प्लीज मेरे घर में थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है, प्लीज आप मेरे को रख लो वापस से. सो ही केप्ट हिम. आई ऑल्सो डोंट नो कि भाई क्यों रखा तुमने, जब तुम्हें पता चल गया था कि वो बंदा गलत है, तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए था वहां पे. ठीक है. तो दे टोल्ड अस कि ही इज फ्रॉड. ओके. पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी ना, वो मोमेंट था. ठीक है. अभी तो मैं हंस के बता रही हूँ, बट उस टाइम पे वी वर लाइक नो वर्ड्स, वी डिडंट न्यू एनीथिंग. ड्यू गया हमारे हाथ से, क्राइस्ट गया हमारे हाथ से, एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने एमिटी क्या, और वो जो दूसरा अथॉरिटी में पर्सन था उसने हमें इतनी सारी बेनेट, एसजीटी, फलानी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बताई. कुछ की रेपो अच्छी नहीं थी, कुछ का बजट बहुत ही ज्यादा था. आई डिसाइडेड कि this is it. I'm gonna take a drop. I'm gonna do some courses. I am gonna, learn some language, teach tuitions and all of that. I've decided. ठीक है. तो उस दिन हमें तो one fine day, it was 3rd of September, हमें जाना था. हाँ, तो हमें वहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज, AI वगैरह का ना कोर्स पता करने जाना था. तो माय फादर केम एंड टोल्ड मी, बताओ क्या करना है. सो लाइक, जाना तो है कंप्यूटर सेंटर, चलो जल्दी ये करो वो करो. देन पापा ने रैंडमली एक जगह फोन मिला लिया. ही टॉक टू द काउंसलर एंड ही वाज लाइक कि आपके कॉलेज में साइकोलॉजी है? दे वर लाइक यस वी हैव इट. एंड ही वाज लाइक, तो कैसा एडमिशन का प्रोसेस है? शी वाज लाइक कि ये फीस है, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए अगले दिन टेस्ट दो और करो. अगले दिन मैंने टेस्ट दिया एंड वो टेस्ट मेरा क्लियर हो गया. उससे मुझे थोड़ा लाइक यू नो पर सेमेस्टर मुझे थोड़ा सा स्कॉलरशिप भी मिल गई. एंड 4th को लाइक ये मेरा टेस्ट हो गया था. एंड फिर हम 8th को, विच वॉज मंडे, हम लोग यहाँ पे आए. हमने बात करी क्या है क्या नहीं. उन्होंने बोला 1 हफ्ते से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड in 2 days I came here on 10th, no 10th नहीं 11th, yeah I came here on 11th. लाइक हम जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज लिटरली कुछ हफ्ता भी नहीं लगा, हफ्ते में हो गई ना. सो दिस वाज इट. एंड बाय द वे, टॉकिंग अबाउट द कोर्स, यस आई डिडंट get BSc. I got BA Psychology Honors with research. So this is a 4-year program. मन था मेरा कि लाइक मैं BSc करूँ, बट देन आई गॉट टू नो कि यार कोई फर्क नहीं है. इवेंचुअली अगर आपको यहाँ करनी है या बाहर करनी है, देयर आर वेज टू डू द सेम थिंग. लाइक जो भी मास्टर्स में मेरा जो भी होगा, there are ways to do that even after doing BA. So I took it. And by the way, अगर कॉलेज का नेम चलो बता ही देती हूँ. तो आई एम इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी राइट नाउ and I'm living in a hostel. Yeah, I know a lot has happened and now you can expect बहुत सारी videos, चाहे वो what do we say, like packing की, hostel, first day of college, everything you can expect it. So बहुत लोग बोलते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है. Honestly, I don't care. क्योंकि यहाँ के रिव्यूज अच्छे हैं, यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है. एंड प्लेसमेंट की बात, यहाँ की बेसिकली लाइक पढ़ाई ठीक है
एंड अगर मैं बीए साइकोलॉजी के बाद मैं कहीं से भी करूँ, चाहे मैं क्राइस्ट से करती या डीयू से करती, मुझे प्लेसमेंट्स नहीं मिलने वाली थी, बिकॉज आई डिडंट हैव लाइक, मेरे पास वो रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं होता ना, तो आपको ऑब्वियसली एमए या एमफिल करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। बाकी यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं, और साइकोलॉजी में वैसे भी पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, आपको खुद ही पैसे भरने पड़ते हैं, तो कॉलेज डजंट मैटर। एंड मैंने बहुत सारे मेरे सीनियर्स हो गए या जो लोग एमए या एमफिल कर चुके हैं, मैंने सबसे बात करी, एंड दे ऑल सेड दैट कॉलेज डजंट मैटर आफ्टर ऑल। अगर लाइक ड्यू ले रहे हो, क्राइस्ट ले रहे हो, ऑब्वियसली दैट्स अ प्लस पॉइंट, पर अगर आप इसके अलावा कोई कॉलेज ले रहे हो तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बिकॉज इन द एंड इट डजंट एक्चुअली मैटर। मास्टर्स मैटर करती है, आपकी स्किल्स मैटर करती है, आपका कम्युनिकेशन मैटर करती है, एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, इन द एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स. Yeah, so that was about it, and I hope you liked this video, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, take care, bye bye, and comment this emoji if you have watched till the end. Bye.